السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امكث حرا فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا اعمقها علما اقلها تکلفا اختارهم لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1443 اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام، آج اس کی 15 تاریخ ہے اور آج جمعۃ المبارک ہے. اسلام میں 12 مہینے ہیں. ایک آخری مہینہ ذوالحجہ اور پہلا مہینہ محرم الحرام. ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایک عظیم یادگار قربانی کی تاریخ منائی جاتی ہے. ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو ذی النورین ذوالہجرتین حیا اور وفا کے پیکر جنت کی 12 بشارت کے مالک عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور شہادت کی عظیم یادگار دن ہے. ذوالحجۃ الحرام کی 27 تاریخ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جن کے منشا پر قرآن کے 12 مقامات میں اللہ نے اپنا فیصلہ اتارا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نبوی کی ممبر اقدس میں امامت کی حالت میں نماز فجر میں قاتلانہ حملے کا دن اور یکم محرم الحرام کو امیر المومنین
खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को शहदाए करबला, नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल हुसैन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की 72 जानिसारों के साथ मारिकाए करबला में जामे शहादत नोश फरमाना। ये महीना जुल्हज्जा है, आज 15 तारीख है। वो 18 तारीख को जुमे का दिन था, जिसमें ज़िन्नूरैन, ज़ुल्हिजरतैन, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर मस्जिद नबवी में दौरान खुतबा कातिलाना हमला बागियों ने किया था। यहाँ से हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की शहादत का आगाज होता है। फिर 40 दिन बाकायदे हयात रहते हैं और हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो जाती है। आज ज़ुल्हिज्जा की 15 तारीख को वफा और हया के पैकर 2 हिजरतों के मालिक और 2 नूर के मालिक उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की जिंदगी के कदर अहवाल और शहादत का मुख्तसर तज़किरा शुरू करते हैं। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5वीं पुश्त में अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसबी कराबत रखते हैं, कुरैशी हैं। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मनाफ। अब्द मनाफ हुजूर का 5वां दादा है और अब्द मनाफ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का भी 5वां दादा है। आका कुरैशी हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी कुरैशी हैं। मां की निस्बत से भी अल्लाह के नबी से कुर्बत रखते हैं और बाप की निस्बत से भी कुरैशी और कुर्बत रखते हैं। सिलसिलाए नसब में 5वां दादा एक है, अल्लाह के नबी का और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। आमुल फील के 6 साल के बाद ईस्वी सन 575-76 में हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत मक्के मुकर्रमा में हुई है। आका की विलादत बासआदत ईस्वी सन 571 में है। ईस्वी सन मुतय्यन है 571 में आका की विलादत बासआदत जन्म मक्के में हुआ। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का 575-76 में मक्के में हुआ। इस हिसाब से आका से उम्र में 6 साल छोटे हैं। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने बचपन में कभी भी शराब नहीं पी थी, जबकि मक्के मुकर्रमा में शराब से बचना बहुत मुश्किल। बच्चा पैदा हो तो उसके हुलकूब में जमजम डाला जाता है। अरब में जब बच्चा पैदा होता था तो उसके हुलकूब में शराब डाली जाती थी। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जाहिलियत की रसूमात से पाक थे। अरब में फहाशी और बेहयाई आम थी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने इस्लाम से पहले जाहिलियत में भी कभी भी ज़िना नहीं किया था। यह हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की खानदानी शराफत है। सहाबा में अबू बकर और उस्मान ये वो शख्सियात हैं जो जाहिलियत की रसूमात से पाक थे। चौथे नंबर पर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हल्का बगोश इस्लाम होते हैं। यह हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का इजमाली तारुफ है। जब आप इस्लाम लाए हैं तो सगे चचा ने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को रस्सियों से मजबूत बांध दिया था। लंबे वक्त तक भूखा प्यासा रखा, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, जब तक कि आबाई दीन को छोड़, आबाई दीन के खिलाफ नए दीन को छोड़कर वापस आबाई दीन में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक खाना पानी बंद करेंगे। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने इस्लाम लाते ही खानदान के आबाई मजहब वालों की
इंतहाई खतरनाक तकालीफ का सामना हुआ। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुकैया का निकाह करा दिया। जब मक्के में हालात बहुत आ गए सहाबा पर, हजरत इब्राहीम और हजरत लूत दो पैगंबर हैं, इनके बाद अपनी बीवी बच्चों के समेत अगर इस्लाम में किसी ने अल्लाह की निस्बत पर हिजरत की हो तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वो पहले इंसान हैं कि जिन्होंने इस्लाम लाने के जुर्म में अल्लाह के पैगंबर की चहीती लगते जिगर हजरत रुकैया के साथ मक्का छोड़ करके हबशा की तरफ हिजरत की थी। ये पहली हिजरत हुई और आका ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर इब्राहीम और लूत के बाद ये दुनिया का तीसरा इंसान है कि जिन्होंने अल्लाह के दीन की निस्बत पर अपने बीवी बच्चों के समेत हिजरत की है। और अंबिया को छोड़कर दुनिया में उस्मान वो पहला इंसान है, गैर अंबिया में नबी के अलावा में हजरत उस्मान वो पहले इंसान हैं जिन्होंने अल्लाह की निस्बत से मक्का छोड़ करके हबशा की तरफ हिजरत की। गज़वाए बद्र की दिन हजरत रुकैया का, फिर बाद में जब आका ने मदीना हिजरत की तो हजरत उस्मान हबशा से मदीना तशरीफ ले आए और यहां आकर के गज़वाए बद्र के दिन जब हजरत रुकैया बहुत बीमार थी तो आका ने हजरत उस्मान को ठहरा दिया कि आपको बद्र में नहीं आना है, रुकैया की तीमारदारी में रहना है, आपको बदरीन के बराबर सवाब मिलेगा। आका बद्र में है, 314 सहाबाए किराम को लेकर के 1300 के मुकाबले में तशरीफ ले गए हैं। यहां बेटी का मदीने में विसाल हो रहा है, आका की बेटी रुकैया का इंतकाल होता है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जनाजा और कब्र की तैयारियों में है, उधर बदर खेला जा रहा है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जब बद्र से तशरीफ लाए हैं, हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन हो चुकी है। अल्लाह के पैगंबर पर आसमान से वही आती है, अल्लाह के नबी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान के साथ करा दो। इस वही के ताबे रहकर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहीती लगते जिगर उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से करा दिया। ज़ुन्नूरैन हो गया, एक नूर रुकैया थी पैगंबर की बेटी, दूसरा नूर उम्मे कुलसूम है पैगंबर की बेटी। उम्मे कुलसूम उस्मान की ज़ौजियत में सन हिजरी 9 तक रही और सन हिजरी 9 में हजरत उम्मे कुलसूम का भी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर विसाल हुआ। गोया के उम्मे कुलसूम हजरत उस्मान की ज़ौजियत में तकरीबन 7 साल रही। सन हिजरी 2 के बाद निकाह होता है बदर के बाद, और सन हिजरी 9 में हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी वफात हो जाती है। इस हिसाब से ज़ुन्नूरैन हुए। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खानदानी शराफत के मालिक थे, हाथ बहुत लंबा था, सखावत ने इज्जत हासिल की थी उस्मान के हाथ पर, बहुत सखी थे। इनके घर से, इनके दरवाजे से कभी कोई साइल, कोई भिखारी, कोई मांगने वाला वापस नहीं जाता था, इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी। गज़वाए तबूक था, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल मांगा था, हजरत उस्मान ने 100 ऊंट दी। आका ने फरमाया और फिर 100, 1000 ऊंट, 300 घोड़े और इनका सामान, और फिर 1000 अशरफिया,
आका मिंबर पर बैठ गए और उन अशरफियों को एक हाथ में लिया, दूसरे हाथ पर डाला, एक हाथ में लिया, दूसरे हाथ पर डाला। फरमाया मा दर्रा उस्मान बा अमिल बाद हादल यौम, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब आका मदीने आए, हिजरत फरमाकर, एक ज कुआं था जिसमें मीठा पानी था और वो यहूदी के कब्जे में था। बहुत भारी महंगे भाव से वो यहूदी पानी बेचता था, उससे मुसलमानों को बहुत तकलीफ होती थी। 114 सहाबा हिजरत करके मदीना आए थे और मदीना के अंसार सहाबा, लेकिन मीठा पानी नहीं था, एक ज कुआं, और वो यहूदी के पास आज भी वो कुआं मौजूद है जिसका नाम बीर रूमा है। आका ने फरमाया कोई है जो बीर रूमा खरीदे और मुसलमानों को वक़्फ़ कर दे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत दिलाने का जिम्मेदार हूँ। हजरत उस्मान ने 25,000 दिरहम में वो कुआं खरीद कर मुसलमानों को वक़्फ़ कर दिया और उसके बाद मुसलमानों के लिए मीठे पानी का उमूमी इंतजाम हुआ। मस्जिद नबी छोटी थी, अब उसकी तौसी की जरूरत थी। 2 यतीम बच्चों की जमीन थी, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत लगवाई और उसको खरीदा। फरमाया कोई है जो जमीन का टुकड़ा खरीद कर मस्जिद में वक़्फ़ कर दे, क्या मिलेगा? कहा जन्नत मिलेगी। 35,000 दिरहम में हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने वो जमीन खरीदी और मस्जिद नबी की तौसी हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में मदीने में कहत पड़ा, लोग मरने लगे। जैसे अभी ऐलान हो गया, 1 महीना हो गया, 25 दिन तो गए नहीं, लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए कि रोजगार मिलता नहीं है, बारिश बारिश बारिश, एक दूसरों का ताआवुन करना चाहिए। मदीने में कहत पड़ा, अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत। अबू बकर इस कायनात का वो हसीन तरीन इंसान है। पैगंबर के दुनिया से रुखसत होने के बाद फितने फितने फितने, हालात, इम्तिहान। एक तो अल्लाह के नबी की वफात सहाबा मानने के लिए तैयार नहीं कि नबी वड़ी मरता होगा, आपकी वफात को मानने के लिए तैयार नहीं। उस फितने को खत्म किया। फिर उसके बाद मुसलमानों की कमान संभाली, उसमें भी इख्तिलाफ। फिर इसके बाद मुसैलमा कद्दाब का कत्ल। फिर इसके बाद जो नबूवत का झूठा दावा किया था, मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद आनसी का कत्ल, जो सहाबा को समझ में नहीं आता था। सहाबा कहते थे अबू बकर, लोग यूं कहेंगे कि नबी दुनिया से रुखसत हुआ और मुसलमान आपस में तलवारों से कट रहे हैं। अबू बकर ने फरमाया यह हरगिज नहीं हो सकता है, उसको कत्ल किया जाएगा। जो खत्मे नबूवत पर हमलावर हो वो दुनिया में कभी बाकी नहीं रह सकता। चौथा फितना खड़ा हुआ, ज़कात का इनकार। नबी को ज़कात लेने का हक था, अब नबी नहीं रहा, ज़कात नहीं मिलेगी। इर्तिदाद फैला। अबू बकर ने मुर्तिद्दीन से जंग की। हजरत उसामा का लश्कर पैगंबर की जिंदगी में तैयार हुआ था और पैगंबर दुनिया से रुखसत हुआ, रवाना नहीं हुआ था। हजरत उमर जैसा इस्लाम का जर्नल ये कह रहा था कि अभी रवाना नहीं करना है। अबू बकर दुनिया का वो वाहिद इंसान था जो मंशाए नबूवत को समझता था। कहा अगर हमारी बोटियां बोटियां हो जाए और अज़वाज मुताहरात के साथ बेहुरमती हो जाए और सहाबा की लाशें कुत्ते नोच ले, लेकिन पैगंबर का फरमान अपनी जगह बाकी रहेगा, जैसे उसामा रवाना होकर रहेगा। इन फितनों में, इन हालात में, इन मुसीबतों में 2.5 बरस अगर मुसलमानों की कमान संभाली और आज तक इस्लाम बाकी रहा तो वो अबू बकर था, जिन्हें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में
अपना मुसल्ला हवाले कर दिया था। मरजुल वफात में पैगंबर 14 दिन रहे, 14 दिन। वो बीमारी जिसमें पैगंबर की वफात हुई 14 दिन, पैगंबर ने अपनी जिंदगी में फरमाया, बुरू अबा बकर फल युसल्ली बिन नास, अबू बकर को हुक्म करो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। 2.5 साल पूरे हो गए। अबू बकर की दौरे खिलाफत में कहत पड़ा, कहत, ये सब नस्तर तो लगज रहे थे, और उसके बाद खतरनाक नस्तर ये लगा कि मदीने में भूख मरे का आलम। लोगों ने कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन, मौत आंखों के सामने है, पेट कमर से लग गए हैं, खाना का इंतजाम करो, फाका बहुत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने लोगों से कहा, आज शाम तक खुदा तुम्हारी मुसीबत दूर कर देगा। खलीफतुल मुस्लिमीन थे। एहसास लोगों की तकलीफ का सबसे ज्यादा जिम्मेदार को होता है। प्रोपेगेंडे होते रहते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से निकल गया, शाम तक खुदा परेशानी दूर करेगा। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का मुल्क शाम से अबू बकर के दौरे खिलाफत में 1000 ऊंटों पर गल्ला लदा हुआ मदीने में शाम को पहुंचा, जो बेचने का, तिजारत का माल था, खरीद फरोख्त का माल था। मुल्क शाम से उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का 1000 ऊंटों पर लदा हुआ गल्ला और तिजारत का सामान मदीने में शाम को पहुंचा। मदीने में जितने बड़े बड़े सेठ व्यापारी थे, जब उस्मान का माल आया है तो पहुंच गए खरीदने के लिए। कहा, उस्मान बोली, बोलो कितने में दोगे? एक ताजिर ने कहा 10 के 12 दूंगा, किसी ने कहा 10 के 13 दूंगा, किसी ने कहा 10 के 15 दूंगा। एक चीज 10 रुपए की है, इसको 15 में खरीदूंगा। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने फरमाया, इसके बाद कोई है बोली बोलने वाला? कहा, इससे ज्यादा तो नहीं, इसलिए कि हमको भी बेचना है। कहा, तुम्हारी बोली खत्म हो गई? कहा, हाँ। कहा, मैं नहीं दे सकता हूं 10 के 15 के बदले में, मैं तो उस वक्त दूंगा जबकि 10 के 20 मिले, 1 के 10 गुने मिले तब दूंगा। तो कहा, हमारे बस में नहीं है खरीदना। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने 1000 ऊंटों पर लदा हुआ गल्ला और तिजारत का सामान, कहा, ए मुसलमानों की जमात, गवाह रहो, खलीफतुल मुस्लिमीन के हाथ मैंने ये सब सदका कर दिया, मैंने लिल्लाह दे दिया, और मुसलमानों के फाके में खलीफतुल मुस्लिमीन इस्तेमाल करेगा। रात को उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो गए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न मसूद फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम सफेद कपड़े से बेतन फरमाकर बहुत स्पीड से जा रहे हैं। इब्न मसूद ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी ठहरो तो सही, बहुत दिनों के बाद आपकी ज़ियारत हुई है, मैं आपकी ज़ियारत करूं, इतनी जल्दी कहां? कहा, देखो जन्नत में अल्लाह ताला ने उस्मान का एक हूर से निकाह करा दिया है, और आज जन्नत में वो निकाह की अरूसी की महफिल लगी हुई है, और अल्लाह मुझे जन्नत में उस्मान की महफिल अरूसी में दावत दे रहा है, लिहाजा मैं उस्मान की जन्नत में महफिल अरूसी के लिए तशरीफ ले जा रहा हूं। यह हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हीरा पहाड़ पर ठहरे थे। अल्लाह के नबी थे, अबू बकर थे, उस्मान और अली। वो हरकत में आया, आका ने फरमाया, ठहर ठहर, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद है। जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान से फरमाया था, ए उस्मान, अल्लाह ने तुझे हया का कमीज पहनाया है, दुश्मन उतारने की कोशिश करेगा, खबरदार उस्मान, सब्र करना, हिम्मत रखना, लेकिन हया का कमीज उतरने मत देना। आका ने जिंदगी में कई मर्तबा फरमाया था, हया का कमीज तुझे अल्लाह ने पहनाया है। कैसी हया?
जब घर में नहाते थे पूरा घर बंद कर देते थे, बदन खोलते नहीं थे कभी। अजीब वाकया। चौथे नंबर में जब इस्लाम लाए, अल्लाह के नबी के दस्ते मुबारक में हाथ देकर बयात की, फरमाते हैं कसम खुदा ताला की, उसके बाद शहादत के आखिरी दिन तक जिस हाथ से अल्लाह के नबी के दस्ते मुबारक पर रखकर मैंने बयात की थी, पेशाब की जगह को उस जिंदगी में उस हाथ से कभी मैंने नहीं छुआ। कैसे पाक दामन थे। उस्मान ने जिस हाथ से पैगंबर से बयात की थी, अपने हसास जिस्म के उज़्व को शहादत के आखिरी दिन तक उस हाथ से कभी नहीं छुआ था जिस दिल में पैगंबर की आजमत का हाल ये था। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। अपनी दो बेटियां एक के बाद दीगरी निकाह में दी थी हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को। जब अबू बकर सिद्दीक के 2.5 साल पूरे हुए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन हुए। जब हजरत उमर पर फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कातिलाना हमला किया, वो 27 ज़िलहज्जा थी और मुहर्रम की पहली तारीख को हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब शहादत हुई थी, उस वक्त हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने, हजरत उमर बिन खत्ताब ने 6 आदमी के खिलाफत बोर्ड बनाया था, जिसमें अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, साद इब्न अबी वक्कास। फरमाया मुसलमान आपस में मशवरा करके इनमें से किसी को खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब कर दे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ के हाथ में वो निजाम था, तीनों ने 3 के हवाले खिलाफत कर दी थी। फिर अली और उस्मान के दरमियान के अंदर बराबर लोगों के नजरिए वो राय मालूम करते रहे। खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हुए। 12 साल कम 12 दिन खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान चारों खुलफाए राशिदीन में सबसे बड़ा खिलाफत का दौर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का है। पहले 6 साल बहुत मकबूलियत, बहुत ही महबूबियत के गुजरे। आखिरी 6 साल इम्तिहान के आए। हमेशा जिम्मेदारियों में सुकून और राहत नहीं होती है, आजमाइश जरूर होती है। इंसान इब्तिला और आजमाइश और इम्तिहान का मजमुआ है। खुशगवार हालात में इंसान काम करे, यह कोई करामत की बात नहीं है। ना खुशगवार हालात में उम्मत का काम करके बताना यह जवामर्दी और बहादुरी है। 6 साल आखिर में जिनके पेट में अजीलन था, दुखता कुछ था, दवाई कुछ तलाश करते थे, वो तबका पैदा हुआ। 6 साल में इनको पुश्त पनाही मिली मदीने में। जब 12 साल पूरे हुए, जुमे का दिन था, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए तशरीफ लाए थे और हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर बलवाइयों का हमला हुआ। पत्थर मार दिए गए, मस्जिद नबवी की तौहीन हुई और हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को कसर खिलाफत में ले जाया गया। जिस 35,000 दिरहम से उस्मान के माल से मस्जिद नबवी की तौसी हुई थी, उस मस्जिद नबवी में नमाज की पाबंदी कर दी गई। कसर खिलाफत में कैद, फिर कसर खिलाफत से निकाल कर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को एक मकान में कैद कर दिया। बलवाइयों ने मदीना के बाहर से आकर पूरे कसर खिलाफत का मुहासरा कर लिया। हजरत मुगीरा इब्न शुअबा ने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से कहा, 3 तजवीज़ें हमें समझ में आती है, आप हुक्म कर दे। फ़इन्न लका क़ुव्वतन व अददन, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास फौज है, हुक्म कर दे इन बागियों का लुकमा बना ले, इनका कीमा कर दे, कुर्बान जाए। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के जवाबात सुनो। कहा,
मदीनतुर रसूल में खून रेजी को उस्मान हरगिज पसंद नहीं कर सकता है। हजरत इब्ने मसूद हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान से कहा, 3 बातें समझ में आती है। कसर खिलाफत के पीछे के हिस्से में एक दरवाजा कर दे जहां बागी नहीं है, आप यहां से निकल जाए, बसलामत आपको मक्का पहुंचा दे, जहां आपके लिए इस्तकबाल ही इस्तकबाल है। या मुल्क शाम चले जाएं, अमीर मुआविया का वहां दबदबा है, आपका इस्तकबाल होगा। या आप हुक्म फरमा दे तो इनसे लड़ ले, जवाब सुनने के काबिल है, सुबह कयामत तक के लिए हिदायत है। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने फरमाया, देखो मदीना छोड़ करके मैं मक्का नहीं जा सकता हूं। क्यों? मैंने अल्लाह के नबी से सुन रखा है, एक कुर्सी होगा जो मदीना में मक्के में एक जुल्म करेगा, आधी कायनात के जुल्म के बराबर गुनाह लिखा जाएगा। लिहाजा मक्के में गुनाह मुझे पसंद नहीं, यानी मक्के में जाकर के मुझसे कोई खता सरजद हो जाए, ये मेरे बस का नहीं, मैं मक्के नहीं जा सकता हूं। और मदीना में नबी का पड़ोस छोड़कर, अल्लाह के नबी का पड़ोस छोड़कर के मैं मक्का नहीं जा सकता। मैं शाम भी नहीं जा सकता हूं, इसलिए कि मुल्क के शाम जाने में मैं मदीना का पड़ोस घुमा दूंगा, और मदीने का पड़ोस घुमाना मैं नहीं चाहता। रही बात लड़ने का हुक्म देना, अल्लाह के नबी के पाकीदा शहर में लड़ाई हराम हो गई। एक उस्मान की जान के बदले में मुसलमानों के दरमियान में बाहम खूनरेजी और खाना जंगी उस्मान कभी पसंद नहीं कर सकता है। कुछ दिन गुजरे, पानी भी खत्म। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने कसर खिलाफत से मुंह निकाला और कहा, या अली व या तलहा व या जुबैर व या आयशा। ये 4 नाम सफ़ात हदीस में है। ए अली, ए तलहा, ए जुबैर, ए आयशा, बहुत प्यास लगी है, पानी पहुंचाओ। सोचो, अंदाजा लगाओ, 40 दिन जिनका दाना पानी बन रहा कसर खिलाफत में, और मदीना की सरजमीन में जिसने आंच नहीं आने दिया वो उस्मान। हजरत अली गुस्से में आए, इमामा बांधा, मस्कीजा भरा और निकले घर से। बागियों ने हजरत अली को धक्कम धक्की किया, मस्कीना तोड़ दिया और हजरत अली से कहा, खबरदार, अगर पानी पहुंचाया, खलीफतुल मुस्लिमीन की मना है, छेड़छाड़ मत करना, लड़ाई नहीं करनी है, खून नहीं बहाना है। इस्लाम की हिस्ट्री देखो, पता चलेगा। अजीब, अली शेर खुदा है, अली फातिह खैबर है, अली फातिमा का शौहर है, अली नबी का चगीता है, शुजाअत बहादुरी का पैकर है। 18 आदमी मिलकर खंदक की जो चट्टान को हटा सकते हैं, फातिह खैबर अली अकेला उठा लेता है। इनकी ताकत का क्या कहना, लेकिन खबरदार, खलीफतुल मुस्लिमीन की मना है। वापस हो गए, पगड़ी उतारी और यूं कसर खिलाफत में फेंक दी, इस बात की शहादत के लिए, ऐ उस्मान, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, जितना मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश की, और मैंने अपने वफा में, अपने अमल में वफा की, और वफा पर मेरी पगड़ी कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में दलील बनेगी। यह अली था। बेटे हसन को भेज दिया, हजरत तलहा ने मोहम्मद को भेज दिया, हजरत जुबैर का बेटा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कसर खिलाफत पर चढ़ गए। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की बीवी नाइला, फिर 400 मुहासिरीन अंदर दाखिल हो गए। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने कसर खिलाफत की छत से मुंह निकाला और फरमाया,
یا جماعت المسلمین، یہ تقریر سننے کے قابل ہے، اپنی قلوب میں لکھ لو، صفحات دل کے اندر بٹھانے کے قابل ہے۔ آئے ہائے، حضرت عثمان نے آخری تقریر کی۔ وہ تقریر کیا تھی؟ اے مدینہ والو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے اور میرے بعد تم کو اچھا خلیفہ نصیب کرے۔ یہ دعا ہے، دعا۔ منہ نکال کر کے پہلے کہا اے مدینہ والو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے، تمہیں خوشخرم رکھے اور تمہیں اچھا خلیفہ نصیب کرے۔ اس کے بعد باغیوں سے مخاطب ہوئی اور کہا میں عثمان ابن عفان ہوں، جس نے جاہلیت کے زمانے میں شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، اگر محسن شادی شدہ کسی سے زنا کرے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں نے اسلام سے پہلے بھی زنا نہیں کیا، کون سے گناہ کی پاداش میں تم میرا قتل روا سمجھتے ہو؟ پہلی بات۔ پھر فرمایا اے لوگو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور ہمارے لیے میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر کے ارشاد پر میں نے 25 ہزار میں بیر روما خرید کر مسلمانوں کو وقف کیا تھا۔ آج اس کنویں کے ایک پانی کے گھونٹ سے تم مجھے محروم رکھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ عثمان تھے۔ یہ تاریخ محسنین کے ساتھ بغاوت یوں ہی کرتی ہے۔ اسلام پورا ایک دم مستند ہے، اپنے محسنین کے ساتھ بغاوت ماضی سے رہی۔ جس کے پیسے سے پانی خریدا گیا، اس کنویں سے مجھے ایک گھونٹ پانی سے تم مجھے روکتے ہو، یہ تمہارے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے مسجد نبوی تنگ تھی، اللہ کے پیغمبر کے حکم سے جب توسیع ہوئی، میں نے 35,000 درہم دے کر مسجد نبوی کی توسیع کی تھی، تم گواہ ہو۔ اے مسلمانوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک داہنا ہاتھ نکالا، پھر بایاں ہاتھ نکالا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور 1400 صحابہ سے فرمایا عثمان کی شہادت پر تم تمام کے تمام بیعتیں لو، اور قرآن گواہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ قرآن میں یہ واقعہ ہے، بہت لمبا ہے۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور صحابہ سے موت پر بیعتیں لی۔ آگے حضرت عثمان فرماتے ہیں نبی نے زندگی میں تبوک میں چندہ مانگا تھا، چندہ میں نے 1000 اونٹ دیے تھے، گھوڑے دیے تھے، 1000 اشرفیاں دی تھی، اور نبی نے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے مدینہ والو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرے نکاح میں اللہ کے پیغمبر کی ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ہیں۔ اے مدینہ والو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں وہ دنیا کا پہلا انسان ہوں امتیوں میں کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کی نسبت سے سب سے پہلے ترک وطن کیا ہے۔ لیکن باغیوں نے کہا سب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، ایک ذرہ برابر ان کے دلوں میں اثر پیدا نہیں ہوا، نفرت تھی، عداوت تھی، کینہ تھا، ایک ذرہ برابر حضرت عثمان کی بات کا اثر نہیں ہوا۔ قصر خلافت پر چڑھ گئے 400 باغی۔ ادھر حضرت عثمان ابن عفان کو اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابوبکر اور عمر فرماتے ہیں عثمان ہم نے آپ کے لیے افطار کا انتظام اللہ کے نبی نے کیا ہے، جلدی کرو، ہم آپ کے افطار کے منتظر ہیں۔ جب حضرت عثمان ابن عفان کو شہادت کا یقین ہو گیا، ایک طرف حضرت حسن ہے، ایک محمد ابن طلحہ ہے،
एक अब्दुल्ला इब्न जुबैर है, साहबा के बेटे छोटे छोटे, और बीवी नाइला है। कातिलाना हमला जब हजरत उस्मान पर होने वाला है, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने भी शहादत की तैयारी कर ली। वो शहीद करने के लिए तैयार, उस्मान पैगंबर का इरशाद कबूल करने के लिए तैयार। रोजा मदीने में रखा था और इफ्तारी जन्नत में होने वाली है। रोजा मदीने में रखा है और इफ्तारी जन्नत में होने वाली है। और इस इफ्तार पार्टी के अंदर मेहमान अल्लाह का नबी है, अबू बकर है, उमर है, और जन्नत की अल्लाह ताला की और मखलूक है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान शहादत के लिए तैयार, अपना वो मुसहफ मंगाया जो जिंदगी पर पढ़ते थे। ये वो सहाबी हैं, दो सहाबा में उस्मान वो वाहिद सहाबी है, हर रात तहज्जुद में पूरा कुरान जिंदगी पर खत्म किया है। साल के 5 हराम रोजों के अलावा हमेशा रोजा रखते थे। जिंदगी भर एक रमजान ईद, एक बकरा ईद और तशरीक के दिन 5 दिन में रोजा रखना हराम है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान साल के 12 महीने 5 दिन को छोड़कर जिंदगी भर रोजा रखते थे। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का चेहरा कोई देख नहीं सकता था, ऐसी शर्म हया का पैकर था कि हर वक्त कपड़ा जो है चेहरे पर रहा करता था। एक मर्तबा अल्लाह के नबी दौलत कदे में तशरीफ रखते थे, दस्तक हुई, कौन? कहा अबू बकर अबू कहाफा अंदर आना चाहता है, आ जाओ। अल्लाह के नबी यूं बैठे थे, इस तरह पिंडली खुली थी, कुछ लुंगी से बेतन थी, आप बैठे रहे। अबू बकर ससरे हैं, आने दी। फिर थोड़ी देर के बाद का कौन? कहा उमर है खत्ताब का बेटा, आने दो। आप यूं ही बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई, का कौन? कहा उस्मान है, दाखिले की इजाजत चाहता है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहर जाओ। आप सीधे हो गए, लुंगी सही कर ली, ठीक बैठ गए। फिर फरमाया आ जाइए। अबू बकर और उमर, इनसे कयामत तक के लिए रहती दुनिया तक कोई साफ दिल इंसान खुदा ने पैदा ही नहीं की। शैखैन है, पूरी उम्मत के मोहसिनीन है। अजीब। दोनों ने पूछा अल्लाह के नबी, समझ में नहीं आया, हम तो ससरे लगते हैं, ये जमाई है, खानदानी निस्बत। अबू बकर का मर्तबा, उमर का मर्तबा उस्मान से ऊंचा है, समझ में नहीं आया। हम आए, आपने वजह बदली नहीं। उस्मान आए, आपने एहतिमाम किया, क्यों? पूछ लेते थे, कीना नहीं रखते थे, पूछ लेते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, ए उमर, मैं उसकी लाज और शर्म की रियायत और लिहाज क्यों न करूं? आसमान पर अल्लाह और जिब्रील भी उस्मान की हया और शर्म की लाज रखता है। जब अल्लाह उस्मान की लाज रखे, अबू बकर लाज रखे, तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन हो सकता हूं कि उस्मान की हया और शर्म की लाज न रखूं? ये उस्मान था, दो नूर का मालिक। शहादत की तैयारी हुई। कातिलाना हमला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर सौदान इब्न हमरान ने किया, मोहम्मद इब्न अबी बकर ने किया। सौदान इब्न हमरान ने कातिलाना हमला किया, छाती में खंजर डाला गया। कुरान पढ़ रहे हैं, फसयक्फीकुहुम अल्लाह व हुवा समीउल अलीम पर जब पहुंचे हैं, खून का कतरा निकलता है और मुसहफ पर फसयक्फीकुहुम अल्लाह पर वो खून का कतरा जाता है। आज भी मिस्र के म्यूजियम में उस्मान का ताजा खून कुरान के मुसहफ की इस आयत पर आज भी मौजूद है। फिरौन की लाश मिस्र में आज भी मौजूद। उस्मान का सीने अक़दस का खून का कतरा कुरान ने महफूज कर लिया। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह इन सब दुश्मनों की तरफ से उस्मान आपके लिए काफी हो जाएगा। और बड़ा सुनने वाला जानने वाला है। बीबी नाइला ने बहुत कोशिश की, हाथ कट गए, दरमियान में पड़े। हसन जख्मी हुई, मोहम्मद जख्मी हुई, अब्दुल्ला इब्न जुबैर जख्मी हुई। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
کہ جس میں سے جب خون کا فوارہ پھوٹا اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان نے آخری جملہ ارشاد فرمایا سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ابن عفان نے مدینہ منورہ میں روزہ رکھا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے لیے بلا لیا۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 12 سال کم 12 دن خلیفۃ المسلمین رہ کر سن ہجری 35 میں 18 ذی الحجۃ الحرام کو ہوئی۔ اسی لیے میں نے مختصر انداز میں حضرت عثمان ابن عفان کی زندگی، حضرت عثمان ابن عفان کا اسلام پر قیامت تک احسان، حضرت عثمان ابن عفان کا مسلمانوں پر قیامت تک احسان اور بغات کا حال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ قربانی کی دعوت دیتا ہے، محرم کا مہینہ قربانی کی دعوت دیتا ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دکھ درد میں مبتلا کائنات کے لیے اللہ کے دیے ہوئے سرمایہ سے اللہ کے مخلوق کے مددگار ثابت ہوں، اتحاد اور اتفاق کی صفوں کو بحال کریں، اختلاف اور انتشار، افواہیں اور غلط باتوں میں آنے کے بجائے معاملات کی تحقیق تک پہنچ کر امت کے مفلوق الحال اور پھنسی ہوئی کائنات کی سیلاب کی زدوں میں انسانیت دکھی، ان کی خدمت کے لیے تتپر اور مستعد رہیں۔ صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ کے نبی کی محبت کا تتمہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تتمہ ہے، لہذا حضرت عثمان ابن عفان شہید ہے اور مسجد نبوی کے ممبر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، امیر المومنین پر مہران نبی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ عمر پہلا شہید، حضرت عثمان شہید اور حضرت علی، اب حضرت علی کے صاحبزادے حضرت عثمان چونکہ 18 ذی الحجہ کو تھے اس لیے میں نے ذکرن مقدم کر دیا۔ اس کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات اور ان کی شہادت کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ اس سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، صحابہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامہ، پوری امت میں سب سے بہترین لوگ تھے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کے نبی کی صحبت والا انسان قیامت تک آنے والے سارے انسان مل کر اس کی 1 منٹ کی کسی صحابی کی صحبت کا مقابلہ نہیں کرتے۔ سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، ان میں ابو بکر پہلے ہیں، عمر دوسرے ہیں، عثمان اور علی پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر بدریین 314 ہیں، پھر حدیبیہ والے 1400 ہیں، پھر فتح مکہ والے 14,000 ہیں، پھر اس کے بعد تبوک والے 70,000 ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے 40,000، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی وصال کے وقت 1,24,000 کم و بیش صحابہ۔ ان کی زندگی کا 1 سیکنڈ صحابیت کی حالت میں پوری کائنات کے تابعین، تابع تابعین، ابدال، کتب، غوث اور ہر اچھے انسان کی تمام عبادتیں مل کر کسی صحابی کے 1 لمحے کی مقام صحابیت کے عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، افضل ہے۔ ابرھا قلوبا، صحابہ کے دل بہت صاف، اقلھا تکلفا، صحابہ میں تکلف بالکل نہیں تھا، اعمقھا علما، صحابہ کا علم بہت گہرا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ان کو چنا تھا، لہذا صحابہ کی روش کو اختیار کرو، اپناؤ، دنیا میں امن و امان، محبت، شانتی اور اس ملک میں اسلام اور اسلامی رواداری کے تحفظ کے لیے جو جو کوششیں اور کاوشیں کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرماوے۔ حجاج کرام اکبری حج سے فراغت پر اپنے اپنے وطن لوٹ رہے ہیں، کوئی حاجی مسجد میں مل جائے، راستے میں مل جائے، مصافحہ کرو، سلام کرو، دعا کی درخواست کرو۔ 40 دن تک
ان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. یہ اللہ کا مہمان ہے. اپنی بستی میں پہنچنے کے بعد 40 دن تک لہذا ان سے مصافحہ کرو. کھجور پانی کے لیے نہیں, صرف اس وجہ سے مصافحہ کرنا ہے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے. 40 دن تک ابھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. لہذا مصافحہ کریں, معانقہ کریں, سلام کریں, دعا کی درخواست کریں. اسی لیے میں نے پہلے فقہ کا مسئلہ بیان کیا تھا. حج کے بعد دعوت کرنا سنت ہے. حج میں جانے سے پہلے کوئی کھانا ثابت نہیں اور کوئی سنت نہیں ہے. آدمی رسم و رواج کے طور پر کرے. کیوں؟ یہ شکرانہ ہے. اتنی بڑی عبادت کی توفیق جب اللہ نے دی اور حج قبول ہو جاتا ہے, کسی کا حج رد نہیں ہوتا. حضرت سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ درباریوں میں سوال پھینک دیا, کوئی ہے جو خضر کی میری ملاقات کرا دے. بہت بڑا دربار تھا سلطان محمود غزنوی کا. کوئی ہے جو خضر علیہ السلام کی میری ملاقات کرا دے. ایک فقیر کھڑا ہوا جس کے گھر میں پھاکا تھا, کچھ تھا نہیں کھانے کا. بچے تل ملا رہے تھے, پیٹ کمر سے لگ گیا تھا. میں کرا دوں گا, شرط یہ ہے 6 مہینہ وظیفہ کھینچوں گا. 6 مہینہ وظیفہ مجھے کھینچنا پڑے گا. لہذا 6 مہینے کا پورا راشن آپ میرا انتظام کر دو, اس لیے کہ میں کمانے نہیں جاؤں گا, وظیفہ کھینچنے میں رہوں گا. سلطان محمود غزنوی نے 6 مہینے کا راشن ڈال دیا. ٹائم ختم ہوتے دیر نہیں لگتی, 40 تو ہو ہی گئی ہے. مختصراً ذکر کر دوں. 6 مہینے پورے ہو گئے. کہاں ہے وہ خضر سے ملاقات کرانے والا دوسرے دربار میں؟ کہاں ابھی وظیفہ اتنا کامیاب نہیں ہوا اور 6 مہینے کی مہلت. بادشاہ ہوتے, جا بھائی 6 مہینے دوسرے. سال پورا ہوا. اب پھر دربار طلب ہوا. اس بیچارے سے خضر کی ملاقات کی ترتیب بنی نہیں. وہ ذرا بھی بہت غصے میں تھے. اب اس نے جواب دیا, میرے سے نہیں ہو سکا, میں تو غریب آدمی ہوں, میں کہاں اور خضر کہاں. وڑی میرے جیسا گنہگار آدمی خضر کا خواب کیا دکھا سکتا ہے. بادشاہ سلامت, پیٹ کا گزران مقصود تھا, بچے پالنے مقصود تھے, اس لیے ہمت کر لی, ورنہ میرے پاس کوئی ایسا وظیفہ تھا نہیں, مجھے معاف کیا جائے. اب بادشاہ کے وزراء تھے, بولو کیا سزا ہو اس کی. ایک نے کہا کاٹ ڈالو. درباری تو درباری ہوتے, کاٹ ڈالو. ایک درباری نے کہا کاٹو اور ہڑکائے کتے اس پر مسلط کرو. ایک نورانی چہرے والا بزرگ دربار میں تھا. پہلے والا جواب آیا. سلطان محمود غزنوی نے پوچھا بزرگ صاحب سے کیا کرنا چاہیے. اس نے برابر جواب دیا. بادشاہ کی گستاخی, قتل کر. دوسرے نے کہا قتل کے بعد کتے چھوڑو, کیا کرنا چاہیے. برابر ہے جواب. تیسرا آیا, اس نے کہا کہ دیکھو اس کو قتل کر دو. پھر محمود ایاز سے پوچھا, ایاز سے جو خاص درباری وزیر تھا, کیا کرنا چاہیے. کہا بادشاہ سلامت, اس کی بھول معاف کر دینے سے آپ کی بادشاہت میں گدرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں. آپ اگر اس کی بھول معاف کر دیں گے تو آپ کی بادشاہت میں کوئی فرق پڑے گا؟ پڑنے والا نہیں. اور آپ نے اس کو 1 سال کھلایا پلایا تو تیرے خزانے میں کمی ہوئی ہے کچھ, تمہارے خزانے میں کوئی کمی تو ہوئی نہیں, معاف کر دو. بزرگ سے پوچھا کیا کرنے کا. بالکل صحیح جواب دیا. اب سلطان محمود غزنوی نے تو اس کو ایک طرف کر دیا اور بزرگ کو لیا. کاٹ ڈالو پھر بھی برابر جواب, کتے چھوڑ دو پھر بھی برابر جواب, اور معاف کر دو پھر بھی برابر جواب. سب میں برابر. ہاں کا کیا مطلب. تو کہا سلامت, جو پہلے نے کہا نا کاٹ ڈالو, تلاش کرو ان کے باپ دادا کا پیسہ کھٹکی کا ہوگا. یہ کھٹکی سر کاٹ ڈالتے ہیں. ہاں برابر. بھلا ہم کہاں سے کھٹکی لوگ ہیں, ان کے باپ دادا تو سب کھٹکی. یہ کھٹکی کے یہاں سر اتارنے کی بات ہوتی. کہا اس کو, کہا ان کے باپ دادا میں سے بادشاہوں کے کتے نہلانے والے رہے ہوں گے. پہلے کتوں کو بھی نہلایا جاتا ہے,
इंसान को जो चीजें सहूलत में नहीं मिलती वो कुत्तों को मिलती है। अभी यूरोप में एक इंसान का कुत्ता गुम हो गया, 7 साल के बाद मिला, या उनके नाम पर प्रॉपर्टियां कर देते हैं, उसके अजाइबात कुदरत है। तो कहा हाँ इनके बाप दादा बादशाहों के कुत्ते नहलाया करते थे, इसलिए उन्होंने कुत्ते छोड़ने वाली बात कही, मानसिकता के मुताबिक। कहा उसको, कहा इसने कहा माफ कर दो, कहा जरूर ये अहले बैत का कोई आदमी लगता है। हुसैन ने करबला में गदवरने कटवा दी और 72 जानिसारों ने जामे शहादत नोश फरमा लिया, लेकिन माफ कर दिया, इंतकाम और बदली की कार्रवाई नहीं की। मेरे बुजुर्गों, ये वाकयात फिर सुल्तान महमूद गजनबी ने उसको माफ कर दिया और बहुत बड़े इनामात से उसको नवाजा। अगर ये हकाइक, ये सलातीन, ये उमरान बड़े नेक लोग हुआ करते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रात सहाबा किराम की मोहब्बत नसीब फरमावे, अजमत नसीब फरमावे और उनकी ताबेदारी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना एक परेशान हाल भाई है, पैर का ऑपरेशन है, 35,000 का खर्च है। नमाज से फरागत के बाद लिल्लाह सदका खैरात के ज़रिए से मदद करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या राहिमल मसाकिन व या दल कुव्वतिल मतीन। अल्लाह हम तमाम को कायनात में बसने वाले इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपकी मारिफत का नूर अता फरमा, आपकी दात आली से ताल्लुक़ अता फरमा। अल्लाह ज़िन्नूरैन ज़ुल हिजरतैन हया और वफा के पैकर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा। ज़िंदगी से वो काम आपने लिया कि क़यामत तक ऐ अल्लाह दुनिया की कोई मस्जिद रहे न रहे, लेकिन नबी की मस्जिद तो रहेगी, तेरा हरम तो रहेगा, इसलिए कि वहाँ दज्जाल भी दाखिल नहीं होगा। उस्मान की बोलती कुर्बानियाँ याद रखी जाएगी। बीरे रूमा आज कई सदियाँ गुजर गई, ऐ अल्लाह उस्मान का इखलास भरा पानी आज तक दुनिया सैराब हो रही है। ऐ अल्लाह काम तो तूने लिया है इन शख्सियत से, ऐ अल्लाह उनके सदक़े में, इनके नाम से ऐ अल्लाह हम माफ़ी की भीख मांगते हैं, हम गुनहगारों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह उनके कुर्बानियों के सदक़े में इस मुल्क के भारत में ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को अमन सलामती नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह जो जाम शहादत नोश फरमाया उस्मान ने, लेकिन तेरे नबी का मदीना खून से रंगीन नहीं होने दिए। वो वफा और हया का पैकर उस्मान, अल्लाह उनके इस कुर्बानी के सदक़े में हमारी नस्लों के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह कायनात बहुत परेशान है, सैलाब की जद में आ गई है, लोग बहुत दुखी हुए हैं, परेशानियों में मुब्तला है। अल्लाह जहाँ बहुत तेज़ पानी बरसा है, आपके फैसले से बरसा है, आपके इरादे के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन मौला कुद्दुस रहम का करम का मामला फरमा दे। अल्लाह जो लोग सैलाब की जद में आ गए हैं और मईशत की तंगियों में मुब्तला हो चुके हैं, अल्लाह रहमुर राहिमीन इनकी परेशानियों को ख़त्म फरमा। अभी तक बिहार में, यूपी में आसमान से बारिश का कतरा भी नहीं बरसा है। अल्लाह उधर ज़रूरत है, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाह इस तरफ से तेरी रहमत की बारिश उधर मुतवज्जे फरमा दे। जहाँ जहाँ सूखा पड़ा है, बारिश की ज़रूरत है, रहमत की बारिश वहाँ अता फरमा दे। उम्मत के बीमारों को सेहत शिफा अता फरमा, परेशान हाल भाइयों की परेशानी दूर फरमा, मकरूदीन के कर्ज की अदायगी भी शक्ल पैदा फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, औलाद वालों के औलाद को मुती फरमा बरदार बना। अरहमुर राहिमीन, आप ही ने अपने फजल से जो कुछ ज़िलहिज्जा के 10 दिन में नेक आमाल करवाए, कुर्बानी, तकबीरात तशरीक, ईद की नमाज, अपने दरबार में उसको कबूल फरमा ले और उसकी कबूलियत के सदके इस बस्ती में रहमत की हवाएं चला दे। अरहमुर राहिमीन, यहाँ भी एतदाल की बारिश अता फरमा और रहमत वाली बारिश से हमें माला माल फरमा। एतदाल से ज़्यादा बारिश से अल्लाह इस इलाके और खित्ते की भी हिफाजत फरमा। अरहमुर राहिमीन, जो लोग दुख दर्द में मुब्तला है,
پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے مکر چکی ہے اور ماں باپ کے لیے درد سر بن چکی ہے، اللہ ان کو مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما، جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ذی النورین ذو الہجرتین عثمان ابن عفان کا جتنی مرتبہ نام لیا گیا ان کے درجات کی بلندی کے بقدر اے اللہ یہ ناپاک زبان اس پاکیزہ نام کو اپنی زبان سے کیا جاری کر سکے، جو زندگی کے 82 سال زندہ رہا، 82 سال زندہ رہا اور ہر روز تہجد میں ایک قرآن رات کو ختم کرتا رہا اور ایام ممنوعہ کے علاوہ کبھی روزہ نہیں گیا، بدر کے بعد سے لے کر کے اے اللہ فتح مکہ تک کوئی غزوہ کوئی لڑائی نہیں چھوڑی، وہ عثمان اے اللہ اپنی سایہ نشان اے اللہ بقی کے اندر حوش کوکب میں وہ آرام فرما رہا ہے۔ اے اللہ رات کو جنازہ نکالا گیا اور حوش کوکب کے اندر دفنایا گیا، اے اللہ اس شہید کے صدقے میں اے اللہ ان کی شہادت کے عمل کے صدقے میں مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل و کرم اور پیارے آقا کے احسانات کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔